Hello students, we live in the beautiful town of Ranikhet and you must have noticed roadside hoardings of landscape and wildlife. Many of them have a common quote written on them. Have you ever noticed? Can you tell me what those famous lines are? Think? Yeah? Yes, you are right. These hoardings have the line, "A thing of beauty is a joy forever," written on it. And today we will study the famous poem, "A Thing of Beauty," written by जॉन कीट्स। बच्चों, हम रानीखेत की बहुत सुंदर शहर में रहते हैं और आपने यहाँ पर आर्मी एरिया में रोड के किनारे होर्डिंग्स देखी होंगी, गौर किया होगा। उन होर्डिंग्स में बहुत सुंदर सुंदर दृश्यावलियाँ हैं और वाइल्ड लाइफ है और उसमें अधिकांशतः एक लाइन लिखी हुई है और वो लाइन क्या है? "अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर।" और आज की हमारी कविता है "अ थिंग ऑफ ब्यूटी" रिटन बाय जॉन कीट्स। John Keats was a British romantic poet. A Thing of Beauty is from his first epic poem, Endymion, a poetic romance. The poem is based on a Greek legend. The theme of the poem is nature, beauty, and youth. Keats loved beauty to the extent that he almost worshipped it. This poem shows the poet's eternal love for beauty. Stanza 1. The poet speaks of the permanent nature of beautiful things, which give us eternal joy. Their loveliness keeps on increasing and never fades away. कवि का कहना है कि सुंदर चीजें हमेशा बढ़ती ही रहती हैं, उसका आनंद निरंतर इंक्रीज होता है और वो कभी भी कम नहीं होता। The everlasting beautiful sight of beautiful things is stored in our memory. हमारी याददाश्त में अच्छी चीजों की सुखद यादें हमारे दिमाग में हमेशा कायम रहती हैं। They give us peace. वो हमें शांति देती हैं। Just like a quiet shady place gives us a sleep full of sweet dreams. जिस प्रकार जब हम गर्मी में एक ठंडी छांव के नीचे सोते हैं तो हमें बहुत आनंद की नींद आती है और सुखद सपने आते हैं। A sound sleep result in mental and physical health. और एक अच्छी नींद हमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करती है। As it provides us tranquility and mental peace. ये हमें सुकून देती है और शांति देती है। Stanza 2. When we wake up the next morning after a sound sleep, all the beautiful memories of our sweet dreams help us to strengthen our bond with earth. Beauty is a kind of flowery band that binds us to the earth. सुंदरता, सौंदर्य, प्राकृतिक जो सौंदर्य है वो हमें इस धरा से जोड़ता है। It is only these things which hold beauty of some or the other kind that help us to keep going. Otherwise there is so much grief in the world that it would have been difficult to survive. ये सुंदरता ही एक ऐसी चीज है, एक ऐसा आनंद हमें प्रदान करती है जो हमें इस धरा पर जीने को, सरवाइव करने को प्रेरित करती है। नहीं तो इस दुनिया में बहुत दुख हैं, तकलीफें हैं। The world is full of sorrow, sadness, defections and depression. We harm ourselves by following unhealthy and wicked path. हम बुरे रास्तों पर चलकर हमारी जीवन जो है वो खराब होता है। हम दुख से, तकलीफों से, डिप्रेशन, उदासी से घिरे हुए हैं। लेकिन बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, इन सब के बावजूद भी सम वंडरफुल साइट ऑफ नेचर हेल्प अस टू शेड सैड एंड ग्रीन थॉट्स। हमारी प्रकृति की कुछ सुंदर चीजें हमें उदासी भरे, दुखपूर्ण, कठोर, निर्दयी, भयंकर जो हमारे थॉट्स हैं उनसे मुक्ति प्रदान करता है और हमें सरवाइव करने को प्रेरित करता है।
They remove the veil of gloom, bringing about hope and optimism in our life. ये सुंदरता ही है जो हमारे जीवन का वेल ऑफ ग्लोम यानी दुख का, तकलीफ का जो आवरण है उसको हटाती है और हमारे जीवन में होप एंड ऑप्टिमिज्म, उम्मीद लाती है, आशा लाती है। हाँ, तो बच्चों अब है थर्ड स्टेंजा। The poet now goes on to list these objects of beauty. यानी वो क्या सुंदरता वाली क्या क्या चीजें हैं ये कवि हमको बताते हैं। He says that the sun, the moon, old and young trees which provide shade to sheep, the daffodil, the greenery, the cool and clear stream which provide respite in the heat of summer, and the bushes growing in the forest with musk rose blooming amidst them are all eternal source of joy and pleasure. यहाँ पर कवि का कहने का मतलब है ये हमारे चांद, सितारे, हमारी हरियाली, बहते हुए झरने, नदी, नाले, खिले हुए फूल, ये सारा हमारा जो ये सराउंडिंग है, जो हमारा ये प्राकृतिक सौंदर्य है, ये सब इटर्नल है। ये कभी खत्म न होने वाला एक ऐसा सोर्स है किसका, जॉय का और प्लेजर का, यानी ये हर हमेशा हमें आनंद प्रदान करता है। हमारी प्राकृतिक सुंदरता हमें हर हमेशा, हर देश, काल और परिस्थिति में, हर समय वो हमें आनंद ही देती है। The poet adds on further to his list, आगे कुछ बातें और जोड़ता है। According to him, there is beauty even in death. कवि कहता है कि मृत्यु में भी सौंदर्य है। वो कैसे? He finds beauty in the stories of our dead ancestors who were deemed as heroic and mighty. जो हमारे पूर्वज हैं, जो शौर्य और वीरता की एक मिसाल हैं, उनकी मृत्यु, उनकी जीवन गाथाएं, वो भी हमें सुंदरता प्रदान करती हैं, वो भी हमें आनंद प्रदान करती हैं, वो भी हमारा पथ प्रदर्शन करती हैं, क्योंकि उनका जीवन, इन शक्तिशाली लोगों का जीवन शौर्य और वीरता की मिसाल है। वो भी हमको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो कवि के अनुसार ये भी जो चीजें हैं, ये भी क्या हैं? अ थिंग ऑफ ब्यूटी हैं। Grandeur is associated with the mighty dead because their triumph and victories in their life had been grand and marvelous. ये क्यों कहा कवि ने ऐसा? क्योंकि हमारे ये जो शक्तिशाली हमारे पूर्वज हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन इनकी शानदार विजय, इनकी फतह और इनका जो जीवन है वो कैसा है? बहुत ही भव्य है, बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही चमत्कारिक है। तो इन लोगों के, इन महापुरुषों का जीवन भी हमें सौंदर्य प्रदान करता है, हमें आनंद प्रदान करता है, हमें आगे बढ़ने को प्रेरित करता है। तो इसलिए जॉन कीट्स के अनुसार ये भी क्या है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। All lovely tales signify that the stories about the heroic deeds of the mighty dead were beautiful. They gave us joy. हमारे इन शक्तिशाली, हमारे जो पूर्वज हैं, जिन्होंने एक मिसाल कायम की है शौर्य की और वीरता की, उनके ये सब भी क्या हैं? ये इनकी जो कहानियां हैं, इनकी जो किस्से कहानियां हैं, ये सब जॉन कीट्स के अनुसार और लवली टेल्स हैं। और ये भी हमको क्या देते हैं? आनंद देते हैं। All beautiful things are like an endless fountain from the heavens sent by God himself. वो सारी चीजें जो हमें, जो सुंदर चीजें हैं, जो हमें आनंद प्रदान करती हैं, ये इस प्रकार है जैसे ये एक एंडलेस फाउंटेन है, कभी समाप्त न होने वाला एक ऐसा झरना है जो हेवन, भगवान की ओर से हमें एक वरदान स्वरूप प्राप्त है। यानी एक ब्यूटी एक ऐसी चीज है, ब्यूटी ऑफ ऑल काइंड ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी ऑफ नेचर, ब्यूटी ऑफ आवर एंसेस्टर्स, ये सब हर प्रकार की जो सुंदरता है वो हमारे जीवन में एक सकारात्मकता लाती है और ये कभी समाप्त नहीं होती है। सो दैट मैनकाइंड मे एंजॉय दीज प्रीशियस गिफ्ट। तो इस प्रकार प्रकृति के द्वारा, हेवन के द्वारा हमें जो एक प्रीशियस गिफ्ट मिला है, गिफ्ट किसका? गिफ्ट ऑफ ब्यूटी। इसको हमें इस्तेमाल करना है, इस प्रीशियस गिफ्ट को। दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द पोएम। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।